not promotional exactly, promotional mix we discussed in the rural market. So we discussed about the two type of medium. We have two type of media, the formal media and the informal media. Who is going to tell me about the formal and informal media? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Who is going to tell me about the formal and informal media? What are basically there in and why it is required in the rural areas? बताइए. Who is going to tell me about it? What kind of media or promotional schemes are utilized in a rural area, rural market? To public. Normal media is a language which is used to speak in a public, adult, and audience. And just for example, you are welcome in. You are welcome. Hi, hello to our customers. Okay. Yes, Pratyay. Good. Ma'am, we can say that formal media is the media that we can use formal language when we are talking in the public to adult or the people who are well respected. And मैम एग्जांपल्स पे मैम हम लोग इसमें ये ले सकते हैं मैम, जैसे इंटरनेट हो गया, मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, या फॉर्मल 1-to-1 मीटिंग को मैम हम लोग फॉर्मल मीडिया बोल सकते हैं. Okay, good. So a formal media is a way in which we are using a standard type of medium for promotion of goods and services, right? Like we are using the television, we are using the newspaper. These are the formal medium to basically promoting about your goods and services, right? Clear? So formal media में क्या क्या चीजें आएंगी? First one is the local language newspaper and the magazines. Why local newspaper? Because in so many rural areas, still people are not able to get the words in English and in Hindi. In southern, if we'll move in south area of India, we are able to see that the people knows their own language like Tamil, they knows Telugu, but they don't know about the English and about the Hindi. तो इंग्लिश तो अर्बन एरियाज में वहां पर बोला जाता है, बट अगर आप एक्सट्रीम रिमोट एरिया में चले जाओगे तो वहां आज भी उनकी लोकल लैंग्वेजेस ही बोले जाते हैं या समझे जाते हैं. ठीक है, बिकॉज द लिटरेसी रेट इज वेरी लो इन द रूरल एरियाज. So that's why we can say that if we are using the print media, so we have to use the local languages. अगर हम यूज भी करें तो लोकल लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर. सो आई गिव सम एग्जांपल ऑफ दैट इन द दैनिक भास्कर इज द लोकल न्यूज़पेपर इन द नॉर्थ, एंड देयर इज सम अदर न्यूज़पेपर लाइक देयर इज आनंद बाजार पत्रिका इन द वेस्ट बंगाल व्हिच कम्स इन द लैंग्वेज ऑफ बंगाली लैंग्वेज में जो आता है आपका. लोक सत्ता है, मराठी में आता है आपका वो. ठीक है, so we can use this local language newspapers and magazines. So I am discussing about the formal media. The second one is a television. So television का क्या impact होता है? That is basically आजकल जो rural areas हैं वहां पर आपके जो दूरदर्शन ले लो एग्जाम्पल में, वो आपके मल्टीपल स्टेट के हिसाब से उनका अलग अलग जो है लैंग्वेज का चैनल है. Like Doordarshan Assam is there, so they are basically speaking in Assam, मतलब Assamese language they are using. So we can use that system as well कि टेलीविजन में जो लोकल आपका न्यूज चैनल चल रहा है पर्टिकुलर दैट स्टेट से रिलेटेड, सो वी कैन एडवर्टाइज अबाउट आवर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर चैनल एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ रेडियो. So if we are talking about the rural people, rural consumers, so rural consumers जो हैं वो ज्यादातर अपना जो टाइम देते हैं वो फार्मिंग में देते हैं, है ना. और मैंने आपको बताया भी था कि नेशनल काउंसिल के अकॉर्डिंग, नेशनल काउंसिल 2011 के जो सर्वे के अकॉर्डिंग द जो पीपल हैं, जो मेल पर्सन है 75% अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो वो, और 5000 से कम आपकी पॉपुलेशन है तो वो आपके रूरल एरियाज में आएगा. और जिस एरिया में 75% से ज्यादा लोग आपके फार्मिंग में है, तो चूंकि उनको मॉर्निंग से ही काम करना पड़ता है, लेट शाम तक दे आर वर्किंग इन देयर फील्ड. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस दे आर यूजिंग रेडियो, है ना. रेडियो पे न्यूज लगा दिया और अपने कुछ लोकल जो उनके चैनल्स वगैरह हैं कुछ वो सुन लिया उन्होंने. सो इस वजह से इनका एक हैबिट होता है, जो एग्रीकल्चरल पीपल हैं या फार्मर्स हैं उनकी एक हैबिट में आजकल इन्वॉल्व है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन
कि रेडियो को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रमोशनल पर्पस फॉर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फिल्म. So let me tell you that the people are very, very delighted when they are watching film in rural areas. For them, it is nothing but it is like a Ram Leela, and it is like a watching a नाटक और मूवी. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है. वी पीपल, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट फॉर मूवी एज वेल. वी आर यूजिंग दैट. बट इन सम एरियाज इन द रूरल, सम एरियाज इन साउदर्न, अभी भी वहां पर फिल्म जो है जैसे चलाया जाता है और लोग वहां पर पूरे गांव आकर के देखती है ना. सो ये हैबिट है. जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वहां पर जो विलेजेस है ना, विलेजेस में जो थिएटर्स हैं वो ऑल टाइम फुल रहते हैं. ऑल टाइम वहां पर लोगों का डिमांड रहता है मूवी के लिए. फेस्टिवल्स में तो ऐसा होता है कि एक एक दिन में 4-4 वहां पर मूवीज दिखाई जाती हैं, है ना. सो इसी वजह से आपका जो लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय दैट इज अ हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रांड विच इज मेकिंग सोप. तो लाइफ बॉय जो सोप है, कोलगेट टूथपेस्ट है, उसका एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आपके थिएटर्स में हुआ है, खास करके रूरल एरियाज में. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द way of basically promoting your brand, and it is a part of the formal media. There is another thing that is a direct mail advertising. So direct mail advertising में क्या होता है, जहां पर information which is related with your goods and services, it is basically directly sent to the people, but it is very much impossible. ये बहुत ही rare है और ये बहुत ही impossible है कि आप जो है डायरेक्ट मेल यूज कर पाए विलेज एरियाज में. but still in the some of the cities or in some of the rural area, not cities, some of the semi urban areas or meal, when we are purchasing the product from any of the store like Aditya Vision, Big Bazaar, and if we are basically purchasing the product from Pantaloons and all, these are the organized retail store. So whenever we are purchasing it, then we are getting the mail or we are getting the messages on our number, right? So this is a way of doing the direct mailing. बट मेलिंग जो है, ये सिस्टम जो है अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है बहुत सारे रूरल एरियाज में. So this is one of the reasons. So direct mail advertisement, we cannot say it that it is very much efficient. Wall painting is also one of the media. This is also one of the media to for promoting the product. अगर आप लोग कोई भी गांव में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां का वॉल जो है वो कलर्ड होता है. टीएमटी वगैरह जो छड़ हम जिनको हिंदी में कहते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह पे दिखेगा वॉल पर, राइट. सो जो वॉल पेंटिंग होता है बहुत ही इकोनॉमिक है, यानी बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली टू यूजिंग द अदर टाइप ऑफ मीडियम. लाइक इफ यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, इफ यू आर यूजिंग द टेलीविजन और दीज थिंग्स, इट इज एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू द वॉल पेंटिंग. सो वॉल पेंटिंग जो है एक बहुत ही इफिशिएंट और इफेक्टिव मीडियम है और बहुत ही अट्रैक्टिव है. ठीक है, अगर कोई वहां पर लोग पास करते हैं तो वॉल पेंटिंग जो है वो इतना ज्यादा विजिबल होता है कि आपकी नजर चली जाती है ना. सो जस्ट थिंक अबाउट द रूरल पीपल्स हु आर लिविंग इन दैट विलेज, इफ दे आर वाचिंग ऑल दोस पेंटिंग्स, सो इट इज मोर efficient and it is more persuading the people as comparison to the other medium. We can take the example of the Patna as well. मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप यहाँ पर जो आपके जू जो एरिया है वहां पर आप देखिएगा वहां वॉल पेंटिंग है, ठीक है, बट दैट वॉल पेंटिंग इज नॉट फॉर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट बट दैट इज फॉर द अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के लिए वो है, अबाउट द क्लीनलीनेस, अबाउट द हाइजीन, right. So and some of the paintings are there of animals, and why it is there, because it is zoo का वो wall है तो zoo से related वहां पर animals, और ये एक advertisement, एक information वो दे रहे हैं, है ना. So wall painting जो है बहुत सारी companies हैं आपकी जो कि वॉल पेंटिंग जो है ये यूज करती है, तरीका यूज करती है, ठीक है. जैसे कि आपके नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल और रूरल स्पेसिफिक मीडिया. तो इनफॉर्मल और रूरल स्पेसिफिक जो मीडिया है ना, इट इज ओनली यूटिलाइज्ड इन द रूरल एरियाज. मतलब ये अर्बन एरिया से ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन आपके रूरल एरियाज में है. तो सबसे पहला था फार्म टू फार्म और स्लैश हाउस टू हाउस प्रमोशन. चलिए, नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल स्लैश रूरल स्पेसिफिक मीडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Farm to farm slash house to house. This is a way of promoting the product. It is a way of persuade करना, influence करना लोगों को. कैसे influence करना? By the two-way communication. If we are talking about the advertisement,
via television, there is only one-way communication. The messages are basically coming from the company and they are telling you about the product, information they are giving you. But if you have any query, you cannot ask directly from the television. TV, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. We cannot do such kind of thing, right? But in the case of the two-way communication, the two people are there. One person, the both person are interacting with each other. So here in this case, in the two-way communication, the salesperson is going to meet the villagers and they are going to persuade the villagers. They are going to speak about the product. That person is going to demonstrate the product, present the product in front of the villagers. If any query or question is from the villager side, they are going to basically ask the question from the people, from the salesperson, right? So at the same time, the question will be raised and same time you will get the answer of that. Clear? So it is a way why the companies are using this kind of promotional technique, because so many people, basically the rural women, they are not going outside a lot for purchasing each and every item. Still they require, they're asking their parents or they're asking their husband or someone to bring those products to them, right? So for influencing those people who are never aware about the products and brand, and for increasing the sales, this technique is used. Okay? And even this is not only for the goods, it is for the product, like this is for the services like LIC. So आपका life insurance जो corporation है, that is a government agency of insurance, and they are basically providing the LIC जो है ये प्रोवाइड कर रहे थे, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे थे उन लोगों को जो गांव में थे. और एक टाइम ऐसा था कि लगभग 70% LIC का जो सेल था वो रूरल एरियाज में हुआ था. सारे के सारे इंश्योरेंस और जो भी आपके थे, और मैच्योरिटी वगैरह और ये सब चीजें हैंडल भी वही करते एजेंट ऑब्वियसली. सो दिस इज हाउ दिस थिंग वाज डन. So farm to farm or house to house, where the two-way communication will be done and the persuasion will become more effective. अगर आपसे कोई बात करता है तो persuasion ज़्यादा effective होता है comparatively if you are watching the movies or if you are watching the ads and all. So if we compare it with that, then the two-way communication of personal selling or the personal preferences to the people, this is more effective promotional technique. Next one is group meeting of the rural customers. Group meeting of the rural customer, what does it mean? Like the people, you all knows about the चौपाल, कि rural areas में ज्यादातर लोग शाम के टाइम पे they are basically sitting in a particular area and the basically male members of the family, ये बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा. फीमेल जो होती है वो घर के सामने वाला जो छोटा सा एरिया होता है वो भी आपका जो कंपैरेटिवली आपके घर से जो ऊपर का थोड़ा एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में ओटा कहते हैं, दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? They are talking about the different things and all. So the company is able to pass the messages. If they are passing it into the group, it is basically acquiring more and more customers. एक person को समझाना और एक साथ 25 से 30-50 लोगों को एक साथ cover करना, that is more effective, right? More efficient as well economically. So this is a way of this is a way of promoting your product or promoting your brand. एवरी मॉर्निंग और लेट इवनिंग, मैंने जो आपको बताया था कि लोग जो हैं दे आर बेसिकली कंडक्टिंग मीटिंग्स, द पीपल आर सिटिंग देयर एंड देयर इज वन मोर पर्सन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ओपिनियन लीडर. इन एवरी विलेज देयर आर 1 or 2 people to whom we are basically getting the information about the various things as well as we are respecting that person. ठीक है, किसी रूरल एरिया में कोई टीचर है, अब जो टीचर है उसको सबने एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे वो है तो रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, और उसको एज अ ओपिनियन लीडर वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया. अब जब ओपिनियन लीडर की तरह उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया तो उनकी सारी बातों को मानते हैं ओपिनियन लीडर की. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि या तो आप ग्रुप मीटिंग में प्रमोशन कीजिए या तो ओपिनियन लीडर है उनको कन्विंस कीजिए. अगर ओपिनियन लीडर जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अगर वो कन्विंस हो गए तो दैट पर्सन इज गोइंग टू कन्विंस होल विलेज फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट, राइट? So you can basically also demonstrate the product in front of the opinion leader and you can give the benefits and about this is soap बेच रहे तो उससे hygiene क्या है, germs free कैसे हो सकते हैं. Demonstration can be done. There are some glasses which will show that how much germs there are in your hand, right? So that is helpful for in case when you want to convince more and more people. So you can basically target the opinion leader and you can target the group discussion or meetings.
ठीक है। एंड यहाँ पर कौन ऐसा करते हैं ज्यादातर, तो बैंक्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स और मशीनरी की जो कंपनीज हैं वो ये सब कंडक्ट कराती हैं ग्रुप मीटिंग्स, और दे आर बेसिकली गिविंग प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट इन द ग्रुप डिस्कशन सेशन विच इज गोइंग ऑन इन द villages. ठीक है। MRF tires also use the same technique. Opinion leader I already elaborated. There are some rural entertainment programs, जैसे आपका कुछ फोक डांस वगैरह हो गया है ना, फोक डांस, फिर ड्रामाज हो गया, पेपेट्री शोज हो गया, या रामलीला हो गया, ये सब चीजें वहां गांव में, मैंने क्या बताया था कि द रूरल पीपल आर वेरी मच रूटेड टू देयर कल्चर, है ना, so that's why they are still enjoying all these things. But for the urban people, what is more important nowadays? Mobile phone, internet, and they are searching here and there, and they are watching so many things, right? But for the rural people, they are totally based on a organic type of thing. Organic type of thing मतलब कि कोई भी चीज जैसे एकदम प्योर आपको नजर आएगा, रामलीला हो रहा है ये सब जगह, तो रामलीला में, मैजिक शोज में, फिर आपके बोल सकते हैं फोक डांस, ये सब में ना, कीर्तन वगैरह जो होता है, तमाशा, ये सब जो चीजें होती हैं वहां पर भी वी कैन प्रमोट द प्रोडक्ट बिकॉज सो मेनी पीपल आर गैदर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो एक ही साथ बहुत सारे लोगों को कन्विंस करेंगे, ये बेनिफिट है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ब्रुक बॉन्ड जो है स्लैश लिप्टन इंडिया लिमिटेड जो है, उन्होंने प्रमोट किया था अपना कड़क छाप टी, स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर मैजिक शो में उन्होंने बेसिकली अपना प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। So many companies are using such kind of technique, basically FMCG companies. So FMCG companies जो है ना, वो उनको पता चल चुका है कि रूरल एरियाज में लगभग 70% पॉपुलेशन है। So if they want to increase their profit and they knows about the situation of urban market that it is nowadays saturated, so they are using such kind of technique. They are basically focusing on the target market nowadays. And I already told you about the audio video publicity vans. So ये क्या करती है, that is also one of the effective tools for the rural communication. जो वैन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और वो फिल्म वगैरह, माइक पब्लिसिटी करती है, ठीक है, एग्जीबिशन करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है. सो दिस इज अ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन. ओके, जीप कैंपेन इज देयर. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द प्रमोशन इन द रूरल एरिया. सो प्रमोशनल टेक्निक जो है वो समझ में आ गया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. What about the others? This point is clear? Yes. So how many students are there in the class? 24 students are there in the class. And what about the others? This promotional technique is clear? Yes, Yes. ma'am. Okay. Okay, let's start with the distribution. So if we are talking about the distribution system, it is one of the important P, which we are referring as a place. ठीक है. So place जो है ये एक refer करता है to the distribution of the product, including the area coverage, channel remuneration, warehousing, inventories, banking and transportation. Why? Because just imagine कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री है, ठीक है. अब वो जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू द प्लेस from where the consumers are able to purchase it. Means accessibility is very low. So in that case, obviously that company is not going to sustain for the long time. भाई अगर ब्रेड खरीदना होता है तो घर के आसपास के कन्वीनियंस स्टोर से खरीदते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, कहाँ जाते हैं? घर के आसपास वाले स्टोर पे जाते हैं. सो how it is possible that the product which is made in the factory, we are getting it from the nearby store? Because of the distribution system. Once the product is made, then it is going to supply to the wholesaler, then after it is going to the retailers and then finally consumers. ठीक है. अब wholesalers भी जो होते हैं उसमें भी वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं. कुछ wholesalers जो होते हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कुछ wholesalers होते हैं, दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मल्टीपल रिटेलर, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर, ठीक है. एंड दीज होलसेलर्स आर गोइंग टू ब्रेक द बल्क, वॉट एवर अमाउंट थोक में सामान ले लिया मैन्युफैक्चरर से, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिटेलर्स को, और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेलर्स जो है अपने हिसाब से लेते हैं. घर के आसपास वाले स्टोर कम क्वांटिटी में सामान लेंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ लोकल एरिया होगा, वो पर्टिकुलर कॉलोनी होगा जहां से लोग उनके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं.
है ना. बड़े retailers like Big Bazaar, they are going to purchase the product in a larger quantity as comparison to the mom and pop store and from the general store, right? So this is how the distribution system is working. So but the distribution system have the three ways. एक होता है intensive distribution, एक होता है आपका exclusive distribution और एक होता है आपका selective distribution. Intensive distribution ज्यादातर उन चीजों में होती है, उन प्रोडक्ट्स में होती है जिसका कंज्यूमर, जिसके कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, यानी मास कंज्यूमर्स जो हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. एग्जाम्पल में आपका हो गया आटा, आपका हो गया चावल, आपका हो गया टूथपेस्ट, राइट? फिर आपका सॉल्ट, शुगर. सो दीज थिंग्स आर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड एवरीवन इज परचेजिंग दीज आइटम्स. सो ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी आर यूजिंग द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर हम हर एक छोटे से छोटे रिटेल स्टोर तक अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि we are basically selling the product, we are selling the branded product and we have a very selected outlet. जैसे बाटा का देख लो, कुछ ही जगह पे बाटा का आउटलेट है और कुछ ही जगह पे वो प्रोडक्ट सेल करते हैं बाटा का. हर एक जनरल स्टोर पे और रेडी वाले के पास तो नहीं मिलेगा बाटा का शूज, राइट? सही बात है ना? तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वो कंपनीज यूज करती हैं जिनके कंज्यूमर बहुत ही ज्यादा नैरो और लिमिटेड है. जैसे ऑडी हो गया, है ना, BMW हो गया, गुची हो गया, पराडा हो गया, बर्बेरी हो गया. दीज आर दूज ब्रांड्स विच जिसके कस्टमर्स बहुत ही लिमिटेड है. और मैं आपको बता दूं पटना में तो ऑडी का शोरूम भी नहीं है. एक जोन में एक या दो शोरूम बना दिया हार्डली, ठीक है. या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको ये मिल जाएंगे, जैसे आपको मुंबई में मिल जाएगा, आपको ये दिल्ली में मिल जाएगा, आपको ये कोलकाता और चेन्नई, ये सब जगह पे मिल जाएंगे, है ना. सो ये तो मैंने एक आपको ओवरऑल पिक्चर बताया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंज्यूमर तक पहुंचता है. ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. व्हाई? सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस है क्या, तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं प्रोडक्ट का, कैसे एरिया कवर करें, कैसे चैनल में प्रोडक्ट को डिलीवर करे आगे तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए, कैसे स्टॉक मेंटेन करे, वेयर हाउसिंग सिस्टम कैसा हो, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है. तो दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट? बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज, वी ऑल नोज दैट इवन देयर इज अ नॉट ऑल वेदर रोड्स आर अवेलेबल, ठीक है. तो ऑल वेदर रोड्स तक अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत मुश्किल है ना. So if you are talking about the major obstacles or hindrances to reach the rural customers, what are those? What are the obstacles? First thing is the distribution chain requires a large number of intermediaries and this increase the cost of distribution. क्योंकि आपको remote areas तक जाना है, वैसी जगह तक पहुंचना है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. सोचो ऐसे भी कुछ एरियाज हैं, अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो तो आपकी इंटरमीडियरीज मतलब कौन होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन बिटवीन होते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के. ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन. आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इट बाय यूजिंग दिस व्हाइट बोर्ड. So we all knows that the manufacturer से आपके जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, आप लोगों ने ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, बीबीए फर्स्ट सेम में पढ़ा है ना, फर्स्ट सेम में पढ़ा है कि नहीं क्लास? Yes, ma'am. And everyone turn on your camera. Every student. Yes, ma'am. Everyone turn on your camera. कैमरा टर्न ऑफ हुआ ना, कल का अटेंडेंस काट लूंगी मैं आज ही तुम लोगों का. चलो, सो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक जो पहुंचाता है तो वो मल्टीपल मेडिएटर्स को यूज करता है. आपके होलसेलर्स आर आल्सो मेडिएटर्स, आपके रिटेलर्स आर आल्सो मेडिएटर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स और डीलर्स आर आल्सो मेडिएटर्स. तो ये जो मेडिएटर्स के नंबर है ना, ये आपके बढ़ जाएंगे जब आप रूरल एरियाज में प्रोडक्ट को सेल करते हो, है ना. क्योंकि आपको पता है कि एक स्टेट में कितने सारे रूरल एरियाज है, वो भी डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, तो हर जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिएटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो सबसे पहला मेजर जो ऑब्स्टिकल है दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चेन रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज एज दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और इससे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट विल बी इंक्रीज्ड.
ठीक है. Next one is non-availability of dealers. So many dealers are not working for the supplying the goods to the rural areas. So there is a non-availability of dealers as well, right? So non-availability of dealers are there. This is also one of the problem. The people are not going to distribute the product to the rural areas. Next one is a poor viability of the retail outlet due to the low business volume. So जो आपके रिटेल स्टोर्स हैं, एक तो बहुत छोटे और बहुत स्मॉल साइज के हैं, खास करके रूरल एरियाज में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स उनके पास होता है और बहुत ही कम वॉल्यूम में प्रोडक्ट होता है ना, और उनकी डिमांड बहुत कम वॉल्यूम की है. तो जब बहुत कम वॉल्यूम की डिमांड है तो ऐसे केस में होलसेलर के लिए कितना मुश्किल होगा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी सेल करना टू द रूरल एरियाज, right? So this is also one of the limitation for providing the or distributing the goods to the rural areas. Next one is inadequate banking facilities. So we all knows कि जो छोटे मोटे retailers होते हैं, they are purchasing the product on the credit basis, है ना? And if they want, some of the people want to start the retail, they want a proper bank loan and all. So there is a poor inadequate banking facilities are there. And the next one is the problem with the infrastructure, which I already said about the road. So there is a lack of all-time road or all-weather roads are not there. ठीक है. So interior जो villages हैं, they are get flooded during the monsoon, and the flood is also one of the reason. आपने सुना होगा कि नॉर्थ बिहार में हमेशा ही फ्लड आता है ना? Yes, ma'am. है ना? तो that problem every year the people are facing. So the rural people are facing this problem. फ्लड वाला प्रॉब्लम है. रोड कनेक्शन मार्केट से थोड़ा कम है, टूट जाता है कई बार फ्लड की वजह से. सो इसकी वजह से भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है. एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो भी बहुत पुअर है विलेज में. सो दीज आर hindrances for distributing the product in the rural area, right? But there are certain ways or techniques which is utilized by the company for distributing the product to the rural area. So I already talk about the obstacles or hindrances. रुकावटें कौन कौन सी वो हमने डिस्कस कर लिया. अब कुछ टेक्निक्स देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रूरल एरियाज में. So the first one is a satellite distribution. Satellite distribution system. Satellite distribution system. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, लेट मी टेल यू. द कंपनी अपॉइंट्स अ स्टॉकिस्ट इन इंपॉर्टेंट टाउन्स. जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टाउन का, दैट इज अ गया, है ना? अब गया के आसपास जितने भी आपके विलेज हैं, उन सब विलेज को कवर करने का काम गया जो है टाउन में किसी स्टॉकिस्ट को दे दिया कंपनी ने. एक स्टॉकिस्ट उसने रख लिया, वो सारे गुड्स का स्टॉक रख लेगा अपने पास, ठीक है? और वो स्टॉकिस्ट क्या करेगा, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के जितने भी एरिया, जितना भी कवर कर पा रहा है वो एरिया में, वो सारे एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्ट को, ठीक है? ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फ्रॉम द रूरल एरिया. मतलब ये रूरल एरिया से ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेंगे, ठीक है? और इनका एक और भी काम है, दे आर ऑल्सो टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी एज वेल. तो कंपनी इनको सप्लाई करती है स्टॉकिस्ट को, और स्टॉकिस्ट फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द रूरल एरियाज. एंड रिसीविंग द स्टॉक, शॉर्टिंग द स्टॉक्स, सप्लाई द गुड्स इन द स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर्स, मर्चेंट. ये जितने भी रूरल एरियाज और आसपास के छोटे मोटे जो भी टाउन है, उन सब जगह पे ये फिर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है. सो इन दिस सैटेलाइट एरिया, सैटेलाइट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन, we are able to see that the first thing is sir, okay, so what is going on in this situation, like यहाँ पर जो स्टॉकिस्ट है वो क्या करेंगे कि जो स्टॉकिस्ट हैं, they are basically responsible for placing the order with the company. So they are in between, like मतलब एक एरिया में वो आ गए, ठीक है? अब वो क्या करेंगे, जो स्टॉकिस्ट होंगे, दे आर गोइंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट टू दिस, दे आर गोइंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट टू दिस एरिया. मतलब जितने भी नियर बाई एरियाज होंगे वहां पर वो सप्लाई करेंगे. ये स्टॉकिस्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा प्लेस करने के लिए ऑर्डर फ्रॉम द कंपनीज को प्लेस ऑर्डर प्लेस करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, एज वेल एज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर basically providing or distributing the goods to the nearby store, nearby retail areas, nearby rural areas, sorry.
एंड इसके बाद ये जो स्टॉकिस्ट होंगे 15 से 30 दिन में क्रेडिट करेंगे कंपनी को पैसे. लाइक दे आर नॉट टेकिंग, द कंपनीज आर नॉट टेकिंग द मनी एट द सेम टाइम व्हेन दे आर सप्लाइंग द गुड्स टू द these stockists, but they are basically giving those goods on the credit basis and they are going to repay the amount within 15 to 13 days. They are going to pay the amount, right? एंड ये जो स्टॉकिस्ट होंगे ये इसीलिए बेटर है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग? दैट दे आर एबल टू पेनिट्रेट द इंटीरियर मार्केट. सो इंटीरियर मार्केट जो रिमोट गांव और छोटे मोटे जो शहर है, टाउन है, उन सब जगह पे ये इजिली प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल में नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया, एवरीडे आपकी बैटरीज होगी, दे आर यूजिंग द सच काइंड ऑफ स्टॉकिस्ट सिस्टम. सो थ्रू द स्टॉकिस्ट वे, स्टॉकिस्ट दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द रूरल एरियाज. The next one is the hub and spokes method. The hub and spokes method. The hub, यहाँ पर जो कोको कोला है ना, हैज डेवलप्ड दिस मेथड. कोका कोला आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है ना? सो कोक जो है, कोको कोला जो है, दे यूज दिस टाइप ऑफ मेथड. इस मेथड में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है इन द एरिया अपॉइंट्स मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन द इम्पोर्टेंट मार्केट. सो जैसे मान लीजिए कि अगर आप पटना ले लीजिए, पटना में कोको कोला का फैक्ट्री है ना, है कि नहीं? है. तो मैन्युफैक्चरर जो है, यानी जहां पर फैक्ट्री है, वो क्या करेगा कि वो मेन एरिया को अपॉइंट कर लेगा. जैसे मान लीजिए कि पटना को ही इसने अपॉइंट कर लिया एज अ मेन एरिया बिकॉज देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरर है. अब यहाँ पर इस पटना से ही वो क्या करेगा ना कि दे विल स्टार्ट डीलिंग विद द रिटेलर्स, राइट? सो इन दिस मेथड जो मैन्युफैक्चरर है वो अपॉइंट करेगा मेन डिस्ट्रीब्यूटर को, हब को डिसाइड कर लेगा, और उसके थ्रू दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट to the small markets within the territory. तो ये इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रख लेगा जो मैन्युफैक्चरर होगा, और उसी जगह से, मतलब जो नियर बाई हो आपके, जैसे आपका जहाँ मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा, पटना में हो रहा, पटना में ही किसी को हायर कर लिया. ठीक है, और उसी के थ्रू दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द मार्केट. नेक्स्ट वन इज अ सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन. सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कंपनीज जो है ना, दे आर सेलिंग द नॉन कॉम्पिटिटिव गुड, कैन ज्वाइन टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट थ्रू अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अच्छा, तुम लोग में से बहुत लोगों ने चीज देखा होगा कि ई कार्ड से बहुत सारे आइटम्स आते हैं. ई कार्ड से आते हैं ना, ई कार्ड से आपके मिंत्रा के भी सामान आ जाते हैं, क्योंकि मिंत्रा तो खैर फ्लिपकार्ट ने तो परचेज ही कर रखा है. लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि एक ही कुरियर वाला बहुत सारा प्रोडक्ट डिलीवर करता है. जैसे ब्लू डार्ट्स के थ्रू ही आपके मल्टीपल चीजें आती है, आपके बैंक का कार्ड भी आ रहा है और आपके मेडिसिन भी आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आ रही है. सुना है ना ये चीज? देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने. तो जो सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक ही चैनल को बना लिया जाता है और एक ही चैनल को मल्टीपल नॉन कॉम्पिटिटिव जो आपके सेलर्स हैं, दे आर गोइंग टू सेल इट थ्रू दैट पर्टिकुलर चैनल. ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स के लिए कुछ कंपनीज आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्ट थ्रू अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और वो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हुए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. एग्जाम्पल में जैसे पीएनजी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मैरिको ऑफ द सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. तो मैरिको एंड पीएनजी आर दे आर यूजिंग द सेम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग. ठीक है, सो यहाँ पर इसको कहते हैं सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर द कंपनीज आर कंबाइनिंग एंड दे आर बेसिकली ज्वाइनिंग to distribute the product through the common distribution channel. यानी common distribution channel के लिए they are doing that and they are basically selling the non competitive goods. ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया everyone? Yes ma'am. Okay, next one is project Shakti. So this project, let me tell you that जो project Shakti है, this initiative is taken by Hindustan Unilever. हिंदुस्तान यूनिलीवर ये नया टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर आया था. इसका दो ऑब्जेक्टिव था. फर्स्ट वन इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट, सेकंड वन इज टू सेल द प्रोडक्ट. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दे यूज द अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनएजुकेटेड रूरल वुमेन फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, अनएजुकेटेड जो रूरल वुमेन है उनको क्या काम मिलेगा, या अनएजुकेटेड पीपल को क्या काम मिल सकता है, लेबर का काम मिलेगा. लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दे स्टार्टेड बेसिकली गिविंग द प्रायोरिटी टू दूस पीपल फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, राइट? एंड उन्होंने क्या किया, दे बेसिक फॉर व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सेलिंग और पेनिट्रेटिंग द रूरल मार्केट एंड फॉर इम्प्रूविंग द रूरल लिविंग और द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पीपल. उसके लिए दे स्टार्टेड बेसिकली डूइंग सच काइंड ऑफ टेक्निक, दे यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक.
and through the health and hygiene awareness, and they also started doing this health and hygiene awareness वगैरह भी उन्होंने किया. So Project Shakti जो है, this is a way, जो Project Shakti है आपका, ये एक तरीका था रूरल विमेन को सशक्त एम्पावर करने का, साथ साथ अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का. और ये पता है कैसे करते थे, ये जो थे ना, ये इनको कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट दे देते थे, इन विमेन को प्रोडक्ट सप्लाई होता था, और ये विमेन जो क्या करते थे, घर घर जाके सामान सेल करते थे, लाइक द पर्सनल सेलिंग जो होता है. तो विमेन जो यहाँ पर थी, और खास करके जो आप लोगों को पता होगा गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था ना, उनको इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी विमेन जुड़ी होती हैं, है ना. सो दे टारगेटेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन बेसिकली फॉर दिस वर्क. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो विमेन जो सेल करती थी इस प्रोडक्ट को, उनको कहते थे शक्ति अम्मा, ठीक है. एंड जो आपके फिर बाद में, पहले तो इन्होंने सिर्फ विमेन को ही जॉब दिया था इसके अंडर में, बाद में उन्होंने क्या किया कि शक्तिमान से लोगों को, मतलब जो भी एक विमेन है उसकी फैमिली में कोई मेल मेंबर है और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो दे स्टार्टेड गिविंग जॉब टू दूस पीपल एज वेल. तो जो शक्ति अम्मा थी वो क्या करती थी, घर के आसपास जो भी उनके एरिया में जो भी उनके घर थे वहां पर वो प्रोडक्ट सेल करती थी. शक्तिमान जो था वो क्या करता था, वो ऐसे एरिया में जाता था जिस एरिया में विमेन का रीच थोड़ा मुश्किल था, तो वो उन सब एरियाज में जाके प्रोडक्ट को सेल करता था. दिस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हिच इज बेसिकली यूज्ड और यूटिलाइज्ड बाय दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर. और हर एक मतलब हर एक जो शक्ति अम्मा थी ना, उनको हर एक कोई को कुछ नंबर ऑफ टारगेट दे दिया गया था, 20 घर, 50 घर, एक गांव, 2 गांव. तो लाइक दिस दे आर बेसिकली वर्किंग विद. और इनका जो सैलरी वगैरह जो इनकम होता था वो 10,000 से 25,000 के बीच में होता था. और they are also earning the extra money if they are basically selling product more than what target is given, and they are earning more profit when there is some mela or haat, because they are selling the product in that melas as well. So I guess this point is clear. This point is clear. Yes, ma'am. Okay. Next one is कि अब हम distribution कैसे कर सकते हैं, melas के through. So we can also distribute the product or sell the product via using this mela. सो यहाँ पर मेलास के थ्रू, जैसे कुंभ मेला आप लोगों ने सुना होगा, बनारस में लगता है. कैटल मेला जो है सोनपुर में लगता है, सोनपुर मेला जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ पर जो, और कुछ ऐसे भी फेयर होते हैं जिसको हम हाट कहते हैं. इट्स नॉट अ फेयर, हाट होता है जो वीकली लगता है, बुध बाजार, सोम बाजार जिसके नाम से हम जानते हैं. तो यहाँ पर भी दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट. सो दीज आर द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोडक्ट. There are some other reasons like the mobile traders, the distribution, physical distribution. So we are going to complete all these topics in the next class. Let's start with the attendance. Attendance बता दो मुझे सारे बच्चे. Anyone have any doubt in any of the point? Anyone have any doubt in any of the point? Okay. No, so ma'am. in the next class, we are going to complete this point and then we'll move toward the agriculture system in rural areas. So we are going to move toward it. Okay. The next class. Thank you, ma'am.